DB switch and standard switch? Yeah, if a switch is used to connect virtual machines on a single ESX, तो हम उसको standard switch बोलते हैं. If it is used for connectivity between virtual machines which are hosted on different ESX, multiple ESX, then उस switch को हम DB switch बोलते हैं, distributed switch. In real environment में किस तरीके से हम यूज करेंगे? रियल एनवायरनमेंट में हम इसको ऐसे इस हिसाब से यूज कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग 2-3 जैसे यहाँ पर हम इसके लिए क्लस्टरिंग के लिए HADRS में मल्टीपल ESX को यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम उसको अगर हम उसको DB स्विच पे करेंगे तो हम एक मशीन से दूसरे उस पे एक स्विच एक ESX से दूसरे ESX पे आराम से इसको स्विच कर पाएगा और क्लोन कर पाएगा, इंशन वगैरह कर पाएंगे DRS. What about standard switch? स्टैंडर्ड स्विच अगर होगा, स्टैंडर्ड स्विच क्योंकि एक ही ESX में काम करता है तो वो एक ESX को दूसरे ESX से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, और इस वजह से जो हमारे HA और DRS जो चीज के लिए यूज करने हैं हमें, ताकि कि अगर एक ESX डाउन हुआ तो वो दूसरे ESX पे मूव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दूसरे ESX से कनेक्ट नहीं कर पाएगा स्टैंडर्ड स्विच. Right. So standard switch basically is used to manage the networking for a particular so manage the networking for the virtual machines which is available in same ESXi host. अगर एक ESXi के अंदर multiple virtual machines हैं, like 10 to 15 virtual machines are running in same ESXi host, then standard switch can perform the task. लेकिन अगर हम distributed switch की बात करें तो in case of DB switch, for example, we have a multiple ESXi. Each and every ESXi contain a multiple virtual machines. So in this case, DB switch come into the picture, जिसमें से अलग अलग ESXi host के VMs को आपस में connect किया जा सकता है, correct? So in our case, we have a 2 different ESXi host और कुछ हमने उसमें instances भी रख रखे हैं, right? So let me explain you about the practical, how you can manage how we can use the DB switch, distributed switch को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं प्रैक्टिकल. Okay, so let's try to understand about the concept first. Although we have already discussed about the concept of standard and DB switch, so standard switch के केस में हमने देखा था कि अगर अपने पास एक सिंगल ESXi host है and a single ESXi host contain a multiple virtual machine like this, and you want to segregate the network, तो I think हमने port group के बारे में बात की थी ना. We just need to create a port group 1 and port group 2 which is also considered as a VLAN. ठीक है, इन दोनों को हमने एक पोर्ट ग्रुप में रख दिया, दूसरे को हमने दो इंस्टेंस जो हैं थर्ड एंड फोर्थ उसको पोर्ट ग्रुप 2 में रख दिया. तो वी आर एबल टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर. चारों मशीनें आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगी क्योंकि हमने इनका VLAN ID डिफरेंट रख रखा है, करेक्ट? बट थिंक अबाउट इट, दीज ऑल 4 virtual machines are a part of same ESXi, and here we are planning to configure multiple ESXi hosts like as ESXi host 1, 2, 3. multiple ESXi हैं और each and every ESXi contain different virtual machines, अलग अलग VMs को ये contain करके रखे हैं. यहाँ पे हमने 3 इंस्टेंस बना रखे हैं. इसके पास भी 2 या 3 इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं ESXi 2 के पास. ESXi 3 also contain a multiple instances. Now we are planning to make a group of एक ESXi, एक VM हमने उठा लिया ESXi 1 से, दूसरा इंस्टेंस हमने उठा लिया ESXi 2 से, तीसरा हमने उठा लिया ESXi 3 से. अब इनका एक जो ग्रुप बनेगा which is help of DB switch, because the work of distributed switch responsible to make a connection between ESXi host. पहला जो DB switch की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितने भी ESXi होस्ट हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, देन उनके जो वर्चुअल मशीन है उनको पोर्ट ग्रुप से अटैच करना. सो आई एम गोइंग टू शो यू द प्रॉपर स्टेप कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा एंड हाउ वी कैन मैनेज इन आवर रियल इन्वायरमेंट.
क्लियर? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है अबाउट द सॉरी द मीनिंग ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, सही है? Yeah, clear. Fine. Let me connect our vCenter server. तो vCenter server ऑलरेडी हमने टर्न ऑन कर रखा है, ESXi भी रनिंग में है. सो डायरेक्टली हम चलते हैं vCenter सर्वर को एक्सेस करते हैं उसका इन्वेंट्री. One 192.168.1.200. This is the IP address of our vCenter server. Need to take the access of vCenter inventory. I just started, so that's why maybe it will take time. थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें. Okay, administrator@vsphere.local. ठीक है, वी आर एबल टू एक्सेस आवर वर्चुअल मशीन्स, राइट? यहाँ पे हमने अपने ESXi प्लस जो भी उसके अंदर इंस्टेंसेस हैं वो हमने कनेक्ट करा रखे हैं, राइट? कैन यू हियर मी?
Yes. नाउ टॉक अबाउट द डीबी स्विच. सो डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच की अगर हम बात करें तो वी जस्ट नीड टू राइट क्लिक, कहीं पे भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है. यू कैन कॉन्फ़िगर डायरेक्टली ऑन योर क्लस्टर, you can configure directly on your data center as well. So data center and cluster both are available. So I'm just going to create a one distributed switch because our entire ESXi, our each and every ESXi are available in cluster. So right click on your cluster and it gives us a number of options. Wait. Sorry. We need to right click on our data center and यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है डीवी स्विच का, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच का. एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच के केस में आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्ट ग्रुप, न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच एंड इम्पोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच. तो यहाँ पे पहले हम एक नई स्विच क्रिएट करते हैं विद एनी नेम लाइक एज अ क्लास डीवी स्विच. यहाँ पे हम एक नई डीवी स्विच तैयार करते हैं विद नेम ऑफ क्लास डीवी स्विच. And our class DB switch is a part of our training. Training is our data center. Next, set the compatibility. So currently we are using 6.5 or 6.5 later. So latest version हम use करेंगे. Click next. यहाँ पे देखिए number of uplinks. So what do you think about the uplink? Number of machines that could be connected to this, perhaps. Number of machine, you're talking about the ESXi? Yes. Exactly. The uplink as we discussed before in case of standard switch, कई सारे ऑप्शन रहते हैं. स्टैंडर्ड स्विच के केस में हमने अपलिंक देखा था. वी डिस्कस अबाउट द वीएम नेटवर्क, मैनेजमेंट नेटवर्क, ऐसा कुछ ऑप्शन अवेलेबल था. तो अपलिंक क्या करता है ना, अपलिंक इज यूज टू मैनेज द इज अ फिजिकल आईपी एड्रेस. ठीक है. अपलिंक क्या होता है? जो फिजिकल आईपी एड्रेस होता है हमारे सिस्टम का, फिजिकल निक कार्ड जो हम कनेक्ट करते हैं, विच इज कंसिडर्ड एज ए अपलिंक. So it means that in this particular DB switch you are able to connect up to 4 different ESXi hosts. Next, I'm not going to make any changes. 6.5, 4 uplinks available. Just need to click finish. ठीक है. वी सक्सेसफुली क्रिएटेड वन स्टैंडर्ड स्विच हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है. एंड नाउ टॉक अबाउट द फीचर्स और ऑप्शंस विच इज अवेलेबल इन अवर डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच. सो डीबी स्विच के अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं. सेलेक्ट नेटवर्क पैनल, दिस इज आवर नेटवर्क ऑप्शन, और यहाँ पे हम नेटवर्किंग पे क्लिक करते हैं. इट गिव अस अ इंटायर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर नेटवर्क, जो भी नेटवर्क हमने इस्टेब्लिश कर रखा है. स्टैंडर्ड स्विच के केस में या डीबी स्विच के केस में जो भी नेटवर्क एक्टिविटी हमने परफॉर्म कर रखी है, वो सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी. नाउ वी आर एबल टू फाइंड क्लास डीबी स्विच जो अभी हमने तैयार किया था, राइट. सो क्लास डीबी स्विच क्या जो रिसेंटली हमने क्रिएट किया है, एंड नाउ वी नीड टू ऐड अवर ESXi to class distributed switch. Is it okay? Can we proceed for next? Yes. Okay, so another important part, DB switch पे right click करेंगे. Just click on DB switch and we don't have any host. We don't have any host, right? यहाँ पे अपने पास कोई भी host available नहीं है. I'm just going to add one host. Right click करेंगे and it give us option add and manage host. Click. Next, how many hosts are available? So 2 host हमने तैयार कर रखे हैं. I'm just going to check mark both. Select 1.12, 1.35. Click next.
एक निक कार्ड इसमें, एक निक कार्ड इसमें. नेक्स्ट. ओके. नेक्स्ट. नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 12 में एक इंस्टेंस और 35 में 3 इंस्टेंसेस अवेलेबल है. जस्ट नीड टू क्लिक नेक्स्ट. फिनिश कर देते हैं. एडिंग इन प्रोग्रेस. ठीक है. We successfully added both instances, not instances. We added up both ESXi host. और now I'm planning to configure a networking for the available virtual machine. इन दोनों ESXi को मिला करके जो इंस्टेंसेस हैं या virtual machines हैं, उनका हम नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहते हैं. क्लियर? सो व्हाट वी नीड टू डू, राइट क्लिक ऑन योर DB स्विच और यहाँ पे हमें पोर्ट ग्रुप ऐड करना है. डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्ट ग्रुप में न्यू पोर्ट ग्रुप एंड पोर्ट ग्रुप नेम इज कुछ भी, कोई सा भी नेम दे देते हैं. डेमो क्लास. दिस इज द पोर्ट ग्रुप नेम. ये हमने नेम रख दिया अपना डेमो क्लास. क्लिक नेक्स्ट. नंबर ऑफ पोर्ट्स मीन्स जैसे आप फिजिकल स्विच परचेज करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स अवेलेबल रहता है, वैसे इसमें हम नंबर ऑफ पोर्ट्स डिसाइड कर रहे हैं विच इज़ हेल्प अस टू कनेक्ट द वर्चुअल मशीन्स. नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कनेक्ट करने के लिए आपको पोर्ट डिसाइड करना पड़ेगा अपने पोर्ट ग्रुप के अंदर. तो 8 इनफ है. मीन्स वी आर एबल टू ऐड अप टू 8 डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स. एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. यहाँ पे अगर हम बात करें तो VLAN ट्रंकिंग एंड प्राइवेट VLAN. सो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द VLAN, राइट ना? हमने VLAN के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था. हाँ जी. सो व्हाट वी कैन से दैट हाउ वी कैन डिफाइन द VLAN. VLAN, which is virtual segregate grouping of a machine, virtual grouping of machines, basically जो एक सिमिलर नेटवर्क के ऊपर होने चाहिए. अब सिमिलर या तो लोकेशन पे हो या सिमिलर टाइप ऑफ मशीन हो, एक ही ग्रुप ऑफ IP एड्रेसेस का पार्ट देते हैं, तो इसलिए उसको VLAN कहते हैं. मीन्स अगर हमारे पास फिजिकल स्विच है उसमें से कुछ पोर्ट्स को हमने अलग कर रखा है, सेपरेट सेग्रीगेट कर रखा है, विच इज़ कंसिडर्ड एज ए VLAN. करेक्ट? करेक्ट. ठीक है. VLAN ट्रंक और प्राइवेट VLAN. सो थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द गैप बिटवीन VLAN ट्रंक और प्राइवेट VLAN, है ना? तो VLAN ट्रंक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. VLAN and VLAN trunk, and another is private VLAN. The use of VLAN is basically, you can say that, for example, you want to create a port group or VLAN with name of class. Second VLAN you create with name of demo. ठीक है. You must need to assign the number. VLAN की एक ID होगी, like हमने इसमें 4 रख दिया, इसमें हमने 6 रख दिया.
यहाँ पे कुछ इंस्टेंसेस हमने लगा दिए एंड यहाँ पे हमने कुछ इंस्टेंसेस को कॉन्फ़िगर कर दिया. आई डोंट थिंक वी आर एबल टू कम्युनिकेट ईच अदर क्योंकि VLAN आईडी डिफरेंट है और हमने दो अलग अलग VLAN को इस्टेब्लिश कर रखा है. थिंक अबाउट ट्रंक. ठीक है, अगर हम बात करें ट्रंकिंग की, ठीक है, VLAN ट्रंकिंग की, तो ट्रंकिंग क्या होता है बेसिकली? ट्रंक के केस में we have a two different VLAN, two different port group. इनके बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है तो हमें क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? ट्रंक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. इज इट फाइन? यस. ठीक है, सो वी कैन से दैट द VLAN trunking responsible to make a communication between two different port group, responsible to configure two different VLAN or port group. Is it clear? यस. ठीक है, लास्ट ऑप्शन है प्राइवेट VLAN. सो प्राइवेट VLAN इज अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल VLAN. यहाँ पे हमने दो को ऐड किया, हमने 3 या 4 VLAN को आपस में ऐड किया, सिर्फ उनकी IP एड्रेस डिफरेंट रखने हैं, कम्युनिकेशन सब में करना है. तो उस केस में क्या होगा कि प्राइवेट VLAN का एक पूरा का पूरा नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लेंगे हम. Is it okay about these 4 different options? प्राइवेट VLAN का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास मल्टीपल VLANs हैं जिनसे उनको आपस में सब में कम्युनिकेट करना है, then we'll create a private VLAN. Exactly. और VLAN ट्रंकिंग के केस में होगा कि हमारे पास 2 VLAN है जिनको आपस में कम्युनिकेट करना है बस, then we'll go for trunking. हाँ, 2 सेपरेट VLAN तैयार किया था, बट आफ्टर सम टाइम कि क्लाइंट रिक्वेस्टेड कि नहीं, हम इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं. HR डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट है, दोनों के बीच में हमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है एंड वी डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस विद VLAN. तो उनको हम क्या करेंगे? ट्रंक कर देंगे, आपस में कनेक्ट करा देंगे VLAN को ताकि आपस में कम्युनिकेशन हो सके. फाइन. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं अभी? आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट VLAN और ID 4 यहाँ पे दे देते हैं, VLAN ID 4. नेक्स्ट. I don't want to make any changes. Finish. ठीक है, सो वी सक्सेसफुली क्रिएटेड आवर VLAN. यहाँ पे हमने एक अपना खुद का VLAN बनाया, बट नॉट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड स्विच, विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच. DB स्विच की हेल्प से हमने एक VLAN इस्टेब्लिश किया है, पोर्ट ग्रुप इस्टेब्लिश किया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन ऐड आवर वर्चुअल मशीन्स. हम अपने VMs को कैसे ऐड करते हैं. ठीक है, सो बहुत ही बेसिक सा स्टेप यूज करना है. बैक टू द वर्चुअल मशीन, और यहाँ पे किसी भी इंस्टेंस पे जिसको हमें ऐड करना है, जस्ट राइट क्लिक ऑन इंस्टेंस, गो टू द एडिट सेटिंग, और यहाँ पे हम देखेंगे नेटवर्क अडेप्टर. अगेन नीड टू क्लिक नेटवर्क अडेप्टर, ब्राउज पे क्लिक करेंगे एंड इट गिव अस ऑप्शन ऑफ नंबर ऑफ पोर्ट्स ग्रुप दैट यू क्रिएटेड. ये तो DB स्विच हो गया. DB स्विच विद नेम ऑफ क्लास DB स्विच के नाम से हमने बनाया था, डेमो क्लास. एंड ये अपने पास पोर्ट ग्रुप हमने किस नाम से बनाया था? विद नेम ऑफ डेमो क्लास, राइट? सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ओके. अगेन क्लिक ओके. तो जो VM1 है ना, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया. VM1 शुड बी कनेक्टेड विद विच वन? शुड बी कनेक्टेड विद अवर ऑन पोर्ट ग्रुप. जो पोर्ट ग्रुप हमने क्रिएट किया किसमें?
अपने व्हाट वी कैन से दैट डीवी स्विच पे। विंडोज़ 10 को मूव करना है, राइट क्लिक है, सेटिंग पे जाएंगे, अगेन HR में इंस्टेंस है, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, आई वांट टू मूव इट इनटू डेमो क्लास, ओके किया एंड क्लिक ओके। इज इट फाइन नाउ? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट और वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। यहाँ पे अभी तक हमने थोड़ा सा पार्ट देखा, लेट्स टॉक मोर अबाउट द डीवी स्विच पार्ट। ठीक है, so another important part which is available in our distributed switch, so let's try to understand about the how many options are available, how many services are available in distributed switch. So आप DB switch पे right click करेंगे ना तो it gives us a lots of option। ठीक है, n number of options are available in our distributed switch, जिसमें से add host हमने देख लिया था, upgrade option है, wait sorry, right click on port group and in the port group we are able to find n number of options, जिसमें से export configuration, restore configuration, migrate VMs to another network। ठीक है, these all are the important terms, these all are the important part which is help us to manage our network। तो एक से start करते हैं। What do you think about the export and restore? To make a copy of a port group, if we need to create multiple port groups, just like templates, then we can copy its configuration and restore it somewhere else. जैसे हमने यहाँ पे डी पोर्ट ग्रुप के अंदर हमने जो भी सेटिंग्स यूज करी हैं, कितने होस्ट हमने डाले हैं और VLAN कौन सा डाला है, फॉर एग्जांपल हमने नॉर्मल VLAN डाला है, VLAN ट्रंक डाला है। अगर हमको सिमिलर सेटिंग्स चाहिए किसी दूसरे पोर्ट पे तो हम शायद हम उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन और दूसरी जगह जाके रिस्टोर कर सकते हैं। एग्जैक्टली अगर हम इसमें कोई चेंजेस किए हैं या कोई कॉन्फ़िगरेशन हमने इस्टेब्लिश कर रखा है एंड यू वांट टू सेव इट फॉर फ्यूचर, की बीच में अगर कोई चेंजेस होता है, बीच में कोई प्रॉब्लम आती है इस पर्टिकुलर डीबी स्विच में या पर्टिकुलर पोर्ट ग्रुप में कोई चेंजेस होता है, तो वी हैव ऑप्शन टू रीस्टोर इट। हम अपने इस पोर्ट ग्रुप के अंदर जो भी सेटिंग्स है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने मैनेज किया है, उसको हम एज ए बैकअप रख सकते हैं एंड ज़रूरत पड़ने पर उसको रीस्टोर किया जा सकता है। करेक्ट? करेक्ट। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा ऑप्शन है। पोर्ट ग्रुप है अपने पास, आई थिंक कुछ इंस्टेंसेस भी हमने लगा रखे हैं। लेट मी मेक फ्यू चेंजेस। डेमो क्लास पे कुछ चेंजेस कर लेते हैं, राइट क्लिक, गो टू द एडिट सेटिंग और यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेते हैं। लाइक डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, दिस पोर्ट ग्रुप यूज फॉर HR डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हमने डिस्क्रिप्शन लगा दिया। कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, टेक द बैकअप, एक्सपोर्ट मतलब बैकअप करा लेते हैं, टेस्ट बैकअप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक जिप फाइल बन के आ गई है अपने डेस्कटॉप पे, जिप फाइल बन के आ गई है विच इज़ नेम ऑफ बैकअप, ये समथिंग करके ये फॉर्मेट है इसका। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इस पर्टिकुलर जो चेंजेस किए थे हमने, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव द चेंजेस। एडिट सेटिंग में जा करके ये हमने हटा दिया ओनली फॉर द टेस्टिंग पर्पज और ओके कर दिया। ठीक है, एडिट किया हमने और ठीक है, डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है, हमने इसको हटा दिया है। नाउ आई वांट टू रीस्टोर, हम क्या करना चाहते हैं, जो हमने चेंजेस किया था, जो बैकअप लिया था ना, उसको फिर से रीस्टोर कराना चाहते हैं। तो राइट क्लिक करो आप इस पे, दिस टाइम रीस्टोर कॉन्फ़िगरेशन, रीस्टोर कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम ए फाइल, रीस्टोर कॉन्फ़िगरेशन, रीस्टोर टू प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन। तो हम फाइल के थ्रू करना चाहते हैं। ब्राउज पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे रखा था हमने, डाउनलोड पे गया, यस,
zip file, next and finish. ठीक है, लेट मी वेरीफाई जो चेंजेस हमने किए थे. ठीक है, ये आप देखिए जो एडिटिंग की थी हमने ना, डिस्क्रिप्शन में जो मेंशन किया था वो डिस्क्रिप्शन आपका फिर से यहाँ पे आ गया है. क्लियर? क्लियर. ठीक है, सो जस्ट एग्जांपल, ये तो छोटा सा एग्जांपल है, राइट. एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, सेटिंग्स के अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हैं. Okay, next. Another important part, another important option, यहाँ पे हम बात करें तो ठीक है, one important part is migrate VM to another network, right? So as per the name suggests, migrate VM to another network. अगर अपने पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं और मल्टीपल इंस्टेंसेस को हमने एक ही डीबी स्विच में या फिर एक ही पोर्ट ग्रुप में रख रखा है, तो हर एक इंस्टेंस को मैनुअली माइग्रेट करना थोड़ा सा टफ है. इट विल टेक टाइम. ठीक है, तो इस केस में VMware के केस में मीन्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, वी आर एबल टू माइग्रेट इंटायर इंस्टेंसेस. जितने भी इंस्टेंसेस हैं, जितने भी वर्चुअल मशीन्स हैं, उनको एक साथ माइग्रेट किया जा सकता है. करेक्ट? ओके, हाउ वी कैन डू दैट, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे वो देख लेते हैं. Migrate to another network. So we haven't created any network, तो do one thing, एक नेटवर्क तैयार कर लेते हैं ना. डॉट नेटवर्क पोर्ट ग्रुप बना लेते हैं, एक और पोर्ट ग्रुप बना लेते हैं. यहाँ पे क्लास टीवी स्विच, राइट क्लिक, न्यू पोर्ट ग्रुप. किसी भी नेम से दे देते हैं. यहाँ पे क्लास डेमो क्लास तो हमने दे दिया है पहले से. लाओ यहाँ पे हम दे देते हैं VM ट्रेनिंग. सेम सेटअप. VLAN ID चेंज कर देते हैं यहाँ पे. आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद 2. फिनिश. ठीक है, रिफ्रेश द पेज. चलिए, यहाँ पे अपने पास क्लास और VM ट्रेनिंग दो डिफरेंट पोर्ट ग्रुप है. अनफॉर्चुनेटली VM ट्रेनिंग के अंदर हमने कोई भी इंस्टेंसेस नहीं ऐड कर रखे हैं. देखिए यहाँ पे ब्लैंक इंस्टेंसेस कोई भी नहीं है. इवन होस्ट की भी इंफॉर्मेशन, होस्ट तो अपने पास है क्योंकि डीबी स्विच में आपने होस्ट ऐड कर रखा है. वर्चुअल मशीन्स 0 है. डेमो क्लास की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 2 है, VM 1 है और विंडोज 10 है. आई वांट टू माइग्रेट दिस वर्चुअल मशीन टू द ट्रेनिंग. तो एक तो तरीका ये है कि 1 by 1, बट थिंक अबाउट इट कि अपने पास अगर 50 to 60 वर्चुअल मशीन्स हैं तो उस केस में इट्स रियली डिफिकल्ट टू माइग्रेट एवरी वर्चुअल मशीन सेपरेटली. तो what you need to do, just right click on your port group, click migrate VM to another network, browse the destination, source demo class, destination आप डिसाइड करेंगे. So I want to put it into the training. चलिए सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, नेक्स्ट. आई वांट टू माइग्रेट इंटायर वर्चुअल मशीन. दोनों इंस्टेंसेस माइग्रेट करना चाहते हैं. यस, नेक्स्ट, फिनिश.
ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों इंस्टेंसेस को माइग्रेट कर दिया, ट्रेनिंग वीएम पे जाते हैं एंड वी आर एबल टू फाइंड बोथ वर्चुअल मशीन, दोनों इंस्टेंसेस यहाँ पे अवेलेबल है। बट डेमो क्लास के अंदर कोई भी इंस्टेंसेस नहीं है क्योंकि हमने एक साथ सभी इंस्टेंसेस को कर दिया है माइग्रेट। इज इट फाइन? प्लीज कंफर्म। यस। तो डीबी स्विच के अंदर ये ऑप्शन है कि अगर अपने पास मल्टीपल पोर्ट ग्रुप्स हैं और हर एक पोर्ट ग्रुप में कुछ इंस्टेंसेस हैं, तो वी हैव ऑप्शन टू माइग्रेट आवर वर्चुअल मशीन, entire virtual machine from one port group to another. Clear? Yes. ठीक है, दिस इज अबाउट पोर्ट ग्रुप। और भी कुछ ऑप्शन ऐसे तो कुछ भी जस्ट बेसिक ऑप्शन यहाँ पे थे। तो डू वन थिंग, जस्ट गो थ्रू द टॉपिक्स जो भी हमने कंप्लीट किए हैं। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, छोटा सा ब्रेक ले ले, उसके बाद आप गो थ्रू कर लो, फिर एक बार वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके।